Hello students, today we will discuss about motion of a body on the vertical plane under gravity. ठीक है, तो first case we take a body is moving on under gravity in the vertical circle with the help of a string. String is massless, so motion on vertical circle under gravity. Clear? With the help of a string, a body is moving on the vertical circle. String is light and inextensible. Clear? Let mass of the body be m, point is O, center of the circle, length of the string be L. It is moving on the vertical circle. These are directions which we have shown with the arrows. These are directions of velocities. O is the center of the circle. It is moving under gravity with the help of string. Clear? Let us calculate minimum velocity at the highest point. Let velocity be v. Because it is moving on the circle, तो मैंने आपको बताया concept of circle. Apply all the forces. तो one force is gravity. Second force is tension by the string. Clear? Now both the forces are toward the center. So you can write T plus mg equal to mv square over L. T plus mg equal to mv square over L. To find minimum speed at the highest point, if the speed is, if we think about the minimum speed, the speed is less, right hand side become less. If we think about the left hand side, mg is constant, this side tension will decrease. If we decrease speed at the highest point, tension will decrease. Minimum value of the tension can be 0. T minimum plus mg equal to mv square over L, minimum speed. Tension minimum कितना होगा? 0. टेंशन इन द स्ट्रिंग मिनिमम कितनी हो सकती है? 0 हो सकती है. सो 0 प्लस एम जी इक्वल टू एम बी स्क्वायर ओवर एल, द मिनिमम स्पीड. एम से एम कैंसिल, यू विल फाइंड मिनिमम स्पीड रूट ऑफ जी एल. इट इज द मिनिमम स्पीड एट द हाइएस्ट पॉइंट of the body so that it can complete the vertical circle in this condition. Clear? If that is the minimum speed at the highest point, let us calculate speed at this point. Suppose that point is A, it is B, that point is C, that point is D. A to B. Let us apply conservation of energy. You can write loss of gravitational potential energy equal to gain in kinetic energy. Clear? Okay. Loss of gravitational potential कितना होगा? कितनी हाइट नीचे आया? L के इक्वल. So this will be mgl, that will be equal to gain in kinetic energy.
एट दैट पॉइंट मान लीजिए वेलोसिटी वी बी है, यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर ली मिनिमम स्पीड। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी बी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी ए स्क्वायर, दैट इज एम जी एल इक्वल टू हाफ एम वी बी स्क्वायर माइनस half m v a square at the point A. Minimum speed is this one. Put this value here, g into L. If you simplify, m is cancelled, multiply by 2, 2gl equal to vp square minus g into L. So clearly vb equal to root of 3g into L. Clear? It is the minimum speed at point B, so that the body can complete the vertical circle. Let us calculate speed at point C under these conditions. Again we apply conservation of energy, mechanical energy from A to C. A to C, loss of gravitational potential energy equal to gain in kinetic energy. तो कितना लॉस हुआ, कितनी हाइट नहीं चाहिए, 2L के इक्वल, तो दैट इज इक्वल टू mg into 2L. It is loss of the gravitational potential energy. This is equal to gain in kinetic energy, that will be equal to half m Vc square minus half m Va square. You can put value of velocity of the at point A, that is root gl, minimum velocity, mg into L 2 times, this is equal to half m Vc square minus half m g into L. If you simplify it, you will get Vc equal to root of 5gl. Clear? It is the minimum speed at the lowest point when the body is moving under gravity with the help of a string. Clear? Similarly, V at D वही होगी जो velocity at B point, that is equal to root of 3 into g into L. Clear? So these are minimum speeds at their respective positions, so that body can complete the vertical circle. Clear? Okay, let us discuss some more cases. मान लीजिए यहाँ पर हमने इतनी स्पीड दी, वेलोसिटी एट दैट पॉइंट बिकम 0, तो स्पीड कितनी आएगी? यू कैन अप्लाई मैकेनिक कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू एम जी एल, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, ये आ गया. सो यू कैन राइट वी नॉट इक्वल रूट ऑफ 2gl. If the speed at the lowest point is root 2gl, then body can reach only up to that level, the horizontal level. At that position, if you apply the forces on the body, tension and mg, as speed is 0, tension will be 0, net force toward the center will be 0. Clear? So from that position it will come back, it will oscillate like this. If the speed at the lowest point, let that point be L. If the VL is less than V naught, it will oscillate. Clear? If speed is root 5gl, it will complete the vertical circle. The speed is root 2gl, it will oscillate.
less than root 2 GL, it will oscillate. Root 5 GL, it will complete the vertical circle. If the speed is more than root 2 GL at the lowest point, the V is greater than root 2 GL and less than root 5 GL. In that condition, it will not complete the vertical circle. पर ये डेफिनेट है, it will cross that level because speed is more than root 2 GL. Clear? Okay. Now it crosses that level, but is unable to complete the vertical circle. Let at any time its position be here. At that position, if you apply equation of circular motion, apply all the forces acting, that is mg, tension. Let that angle be theta, it is theta, mg का कंपाउंड कितना आएगा इधर, mg cos theta. Clear? It is mg cos theta, इस साइड आएगा mg sin theta. Now net force toward the center is T plus mg cos theta. Let speed at that point be v. Okay? Apply the equation of circular motion. Net force toward the center, this is equal to m square over L. Clear? Now as the body is moving up, its speed will decrease, so right hand side is decreasing, but theta will decrease, cos theta will increase, आपको पता है. So this term is up, ये पूरा term बढ़ेगा, but right hand side is decreasing. It means tension must decrease so that लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स इक्वल टू, जो ट्रेंड राइट हैंड साइड में चल रहा है वही ट्रेंड लेफ्ट हैंड साइड में भी चले, बिकॉज राइट हैंड साइड इज डिक्रीजिंग, लेफ्ट हैंड साइड शुड ऑल्सो डिक्रीज, बट वन ड्रम इज गोइंग अप, डेफिनेटली टेंशन विल डिक्रीज. क्लियर? ओके. मिनिमम वैल्यू ऑफ टेंशन कैन बी 0. इन दैट केस mg cos theta equal to mv square over L. If you simplify it, v equal to root of gl cos theta. It is a speed at a point where particle going to leave the circle. After leaving the circle, because tension becomes 0, it is only one force is acting, that is mg, so it will move on the parabolic path. It will leave the circle like this, और यहाँ आके देर विल बी सडन एक जर्क लगेगा और इट विल मूव ऑन द सर्कल, बट फ्रॉम दैट पॉइंट टू दैट पॉइंट इज मूविंग ऑन द प्रोजेक्टाइल. सो दैट इज द हाईएस्ट पॉइंट, that is highest point. If you calculate that angle theta, it is theta, it is 90 minus theta, that will be theta. This angle will be theta. Speed is v here. At the highest point, velocity, horizontal component, जो प्रोजेक्टाइल में आपने पढ़ा था, it is v cos theta. Clear? So इस तरह से पार्टिकल एक स्लैक हो जाएगी यहाँ पर थ्रेड, इस तरह से उसकी मोशन होगी. क्लियर? लेट अस डिस्कस वन मोर केस. अभी हमने डिस्कस किया ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन द वर्टिकल सर्कल विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग, लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल. अगर मैं केस ले लूँ लाइट रॉड की हेल्प से अगर रोटेट करे तो उसकी स्पीड्स किस तरह से आएंगे. मान लीजिए लाइट रॉड, लाइट रिजिड रॉड ऑफ लेंथ L,
A body is moving on the vertical circle. Clear? At the highest point, minimum speed कितनी आएगी? अभी आपको स्ट्रिंग के केस में पता है रूट GL बताई थी आपने. इस केस में कितनी आएगी? अभी तक आपने पढ़ा स्ट्रिंग की हेल्प से टॉप पॉइंट पर कितनी स्पीड आई थी? रूट GL. अगर मैं वहाँ 0 स्पीड दे दूँ बॉडी को और बॉडी को रिलीज कर दूँ, इट विल फॉल डाउन इमीडिएटली अलोंग द डायमीटर. पर इस केस में क्या है, अगर मैं इसको 0 स्पीड दे दूँ तो ये नीचे नहीं गिर सकती बिकॉज ऑफ रॉड. तो मिनिमम स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट इन दिस केस विल बी 0. थोड़ा इसको अगर डिस्टर्ब कर दिया, इट विल स्टार्ट टू मूव और एट दैट पॉइंट velocity will be root 2GL. At that point, velocity will be applying conservation of mechanical energy. It will be root 4GL. At that point, root 2GL. Clear? तो रॉड के केस में सारी सिचुएशन चेंज हो गई. Now, अगर एक ट्यूब है, मान लीजिए it is tube, there is smooth tube. इसके अंदर एक बॉल जस्ट फिट करती है, जस्ट फिट कर कैन मूव इजीली. इसकी टॉप पॉइंट पर स्पीड 0 मिनिमम आएगी, मिनिमम स्पीड इसकी 0 आएगी. क्लियर? एंड एट दैट पॉइंट स्पीड विल बी रूट 2GL. एट द बॉटम स्पीड विल बी रूट 4GL if L is the radius. At that point root 2GL. क्लियर? तो स्ट्रिंग का केस, रॉड का केस, अगर ये स्मूथ ट्यूब है उसके अंदर एक बॉल जस्ट फिट करती है और कैन मूव, स्मूथ है, कोई लॉस नहीं एनर्जी का, तो स्पीड्स का ये रिलेशन आएगा जिससे बॉडी जस्ट कंप्लीट करे वर्टिकल सर्कल. लेट अस डिस्कस सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दीज कंसेप्ट्स. मान लीजिए स्ट्रिंग की हेल्प से एक बॉडी को लोएस्ट पॉइंट पर स्पीड दी रूट GL. ठीक है? क्लियर है? अभी आपको मैंने कंडीशन बताई थी कि यहाँ पर रूट 2GL स्पीड होगी तो यहाँ तक पहुँचेगी बॉडी, देन विल ऑसिलेट. इट इज लेस देन रूट 2GL, इट मीन इट विल ऑसिलेट. ओके? इस पोजीशन पर लेट अस कैलकुलेट टेंशन इन द स्ट्रिंग. इस समय इसमें टेंशन कितना आएगा? मान लीजिए लोएस्ट पोजीशन है, TL मान लेता हूँ टेंशन. सो TL माइनस mg इक्वल टू mv स्क्वायर. स्पीड कितनी है? रूट GL का स्क्वायर डिवाइड बाय L. सो टेंशन एट दैट पोजीशन इन दिस कंडीशन इज 2 times weight of the body. Clear? Now clearly it will stop somewhere. उस पोजीशन पर लेट अस कैलकुलेट एंगल वेयर इट विल स्टॉप. एट दैट पोजीशन मान लीजिए इट इज थीटा एंगल, फोर्स mg, टेंशन इज T. सो क्लियरली T माइनस mg cos theta. T टुवर्ड द सेंटर, mg cos theta कंपोनेंट इस साइड. तो नेट फोर्स कितना आया? ये, क्योंकि स्पीड है नहीं तो दिस इक्वल टू 0. तो T इक्वल टू mg cos theta. क्लियर? तो इस पोजीशन पर टेंशन कितना आया? mg cos theta. एंगल की वैल्यू भी नहीं पता, यू कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी दिस इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी. क्लियर? कितना हुआ काइनेटिक एनर्जी का लॉस? जितना इनिशियल एनर्जी थी वही लॉस होगी क्योंकि फाइनल तो 0 है स्पीड. सो हाफ mgl इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का गेन कितना होगा? ये हाइट, पूरी लेंथ कितनी है? L, ये थीटा, इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे तो ये जो डिस्टेंस है दैट विल बी L cos थीटा. दैट पार्ट इज L cos थीटा. तो ये कितना हुआ? L माइनस L cos थीटा.
तो दैट विल बी इक्वल टू mg into L 1 minus cos theta. mgl is cancelled, so you can write 1 by 2 equal to 1 minus cos theta. So cos theta equal to 1 minus 1 by 2, so cos theta, this will be equal to half, theta equal to 60 degree. At angle 60 degree, जो थ्रेड 60 डिग्री बनाएगा उस पोजीशन पर बॉडी रुक जाती है, और उस समय जो टेंशन आएगा वो टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो. दैट टेंशन विल बी इक्वल टू mg/2. देखिए इस पोजीशन पर टेंशन कितना है 2 mg, जहाँ रुक जाती है बॉडी वहाँ पर टेंशन कितना हो गया mg/2. एक पोजीशन ऐसी भी आई होगी जहाँ पर टेंशन mg के इक्वल आएगा. लेट अस कैलकुलेट दैट पोजीशन ऑल्सो. मैं दोबारा से डायग्राम बनाता हूं इसका. मान लीजिए थीटा मान लेता हूं दोबारा से एंगल. इस समय जो टेंशन है वो दैट इज इक्वल टू mg. इसकी पोजीशन बताने हैं. अप्लाई द फोर्सेस, रिजॉल्व द फोर्सेस along the radius, normal to the radius. mg cos theta component इधर, mg sin theta इधर. Clear? Okay. Because that point is before the position where it stops, so यहाँ पर कुछ स्पीड होगी डेफिनेटली. मान लीजिए एट दैट पोजिशन स्पीड भी मान लो. अप्लाई करिए न्यूटन्स लॉस. सर्कुलर मोशन में नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इक्वल टू T माइनस mg cos theta इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर L. क्लियर? नाउ यहाँ पर टेंशन हमें गिवन है तो T की वैल्यू रख दीजिए. mg माइनस mg cos theta इक्वल टू m ओवर L इंटू वी स्क्वायर. एट दैट पोजिशन स्पीड निकाल सकते हो आप. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दीजिए. इस पोजीशन पर हमें स्पीड पता है, सो लॉस ऑफ एनर्जी mv स्क्वायर. चलिए वेलोसिटी में निकालता हूं इधर से. अब लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी का कितना लॉस होगा? इनिशियल एनर्जी स्पीड रूट gl आपको पता है, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mv स्क्वायर स्पीड दैट पॉइंट. दिस विल बी इक्वल टू mg h, ये वाली हाइट ये कितनी आएगी L cos theta. कंप्लीट कितनी है L, तो दैट विल बी L माइनस L cos theta. तो दैट इज 1 minus cos theta. Clear? Now m is cancelled. If you simplify it, you will get v square equal to gl is common 1 by 2 minus 1 plus cos theta into 2. v square is 2gl 1 by 2 minus 1 cos theta. So v square is g into L. 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर, देन इट विल बी 2 cos theta माइनस 1. v स्क्वायर की वैल्यू इसमें रख दीजिए. यू विल गेट m ओवर r इंटू वी स्क्वायर g into L 2 cos theta minus 1. Let us calculate theta from that equation. mg is common. 1 minus cos theta is equal to mg 2 cos theta minus 1. mg is cancelled. 1 minus cos theta is 2 cos theta minus 1. If you simplify it, then cos theta is 2 by 3.
तो ये वो पोजीशन है जहाँ पर टेंशन वेट के इक्वल आएगा, mg के इक्वल आएगा। उस समय स्पीड भी निकाल सकते हो इससे। तो यू फाइंड स्पीड इज रूट ऑफ g इंटू एल 2 into 2 by 3 minus 1. If you simplify it, you will get gl over 3. Clear? Okay. Let us discuss one more problem based on these concepts. मान लीजिए इस तरह का एक ट्रैक है, स्मूथ ट्रैक है ये। जो टॉप पॉइंट की हाइट है इतनी हाइट से ही हमने एक बॉडी को रिलीज किया। मान लीजिए इस बॉडी की हाइट h, दैट हाइट इज ऑल्सो h। तो रेडियस कितनी हो गई? रेडियस हो गई h/2। बॉडी इज मूविंग अंडर ग्रेविटी, स्मूथ सरफेस है सारा, फिक्स ट्रैक, स्मूथ। मोस्टली बच्चों से पूछा जाता है बताइए बॉडी कहाँ जाएगी, कहाँ जाकर रुकेगी। तो h हाइट से छोड़ी तो बच्चे मोस्टली कहते हैं टॉप पॉइंट तक जाएगी, जो कि गलत है। बिकॉज आफ्टर दैट इट इज मूविंग ऑन द सर्कल। सर्कल में कि कंसेप्ट अप्लाई करोगे तो आपको पता चलेगा कि किस पोजीशन पर जाके क्या कहाँ छोड़ेगी, ऑसिलेट करेगी या कंप्लीट करेगी। लेट अस सी इट। सो इफ यू अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, देन at the lowest point velocity will be root 2gh, loss of gravitational potential energy mgh equal to gain in kinetic energy half mv square। ये आ जाएगा। यहाँ पर h/2 क्या है? रेडियस। तो h की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, h इक्वल टू 2r। तो आपको पता चलेगा इट इज 4gr। क्लियर? इट इज नॉट रूट 5gr। जो स्ट्रिंग का केस है वो यहाँ भी अप्लाई होगा। बॉडी इज मूविंग इनसाइड द स्मूथ सर्कुलर ट्रैक। तो यहाँ पे स्पीड रूट 5gr होनी चाहिए थी, इट इज रूट 4gr है। इट शुड बी मोर देन रूट 2gr। रूट 2gr से ग्रेटर है तो इस लेवल को तो क्रॉस करेगी। इट इज क्लियर? इसको क्रॉस करने के बाद और यहां तक ये पहुंच नहीं सकती बिकॉज इट इज लेस देन रूट 5gr। इट मीन्स इट विल लीव द ट्रैक बिफोर रीचिंग बिफोर द पोजीशन बी। मान लीजिए इस पोजीशन पर वो उसको लीव करती है। अप्लाई करिए इसके ऊपर फोर्सेस। दैट इज वन फोर्स इज mg, दूसरा ट्रैक से आएगा नॉर्मल रिएक्शन, ओनली टू फोर्सेज आर एक्टिंग। स्पीड इस पोजिशन में मान लीजिए v, रिजॉल्व पर मान लीजिए एंगल थीटा, दैट इज एंगल ऑल्सो थीटा। mg का इधर कंपोनेंट कितना आएगा बच्चों? mg cos थीटा। इट इज mg cos थीटा। इस साइड इट इज mg sin थीटा, इट इज mg cos थीटा। तो नेट फोर्स कितना हुआ सेंटर की तरफ? n प्लस mg cos थीटा नेट फोर्स इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r, m इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। अप्लाई करिए लॉजिक। एज द बॉडी इज गोइंग अप, राइट हैंड साइड में स्पीड डिक्रीज होगी, राइट हैंड साइड डिक्रीज होगी। लेफ्ट हैंड साइड mg तो कांस्टेंट है, थीटा विल डिक्रीज। ये जो टर्म है mg cos थीटा ये अप होगा, बढ़ेगा, पर राइट हैंड साइड डिक्रीज हो रहा है। इट मीन्स n विल डिक्रीज। क्लियर? n
विल डिक्रीज, और एन नॉर्मल रिएक्शन कितना हो सकता है मिनिमम इस केस में 0 हो सकता है। तो व्हेन इट लीव द ट्रैक नॉर्मल रिएक्शन बिकम 0, सो एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम बी स्क्वायर ओवर आर। तो वेलोसिटी उस पोजीशन पर आएगी आर इंटू जी इंटू कॉस थीटा। क्लियर? मेरा क्वेश्चन ये है कि बॉडी की मिनिमम स्पीड क्या आएगी थ्रू आउट द मोशन। बॉडी की मिनिमम स्पीड निकालनी है। मोस्टली बच्चे 0 बताते हैं क्योंकि एच हाइट से जोड़ा, सोचते हैं एच हाइट तक जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर दिया उन्होंने, जो कि गलत है। तो मिनिमम स्पीड 0 ना होके नॉन जीरो वैल्यू आएगी। लेट अस कैलकुलेट दैट वैल्यू। ये हमें पता चल गया इस लेवल को क्रॉस करने के बाद इस कंडीशन में रॉड नहीं है इधर, ये ट्रैक है, ट्रैक के अंदर बॉडी चल रही है, किसी से अटैच नहीं है। इट विल लीव द सर्कल। सर्कल को लीव करने के बाद इसका जो पाथ होगा दैट विल बी पैराबोला। तो मिनिमम, मेरा क्वेश्चन क्या है, मिनिमम स्पीड क्या आएगी? मिनिमम स्पीड विल बी एट दैट पोजीशन, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ द बॉडी, ये आएगा इस पोजीशन में मिनिमम। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, ये एंगल भी थीटा आता है और टॉप पॉइंट पर जो स्पीड है दैट इज v cos थीटा। लेट अस कैलकुलेट v cos थीटा। मिनिमम स्पीड आएगी ये, पर v भी नहीं पता मेरे को, थीटा भी नहीं पता। लेट अस कैलकुलेट, लेट अस अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम a टू, मान लीजिए पॉइंट p है, a से p तक। तो a पॉइंट पर टोटल एनर्जी कितनी है? दैट इज इक्वल टू mgh। जो यहाँ काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। एट पॉइंट p पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू mg r प्लस r cos थीटा। r इक्वल टू h बाई 2, सो h बाई 2 1 प्लस cos थीटा प्लस हाफ m v स्क्वायर, वेलोसिटी एट पॉइंट p। एट पॉइंट p वेलोसिटी वी हैव कैलकुलेटेड रूट आर जी कॉस थीटा, इसकी वैल्यू रख दीजिए इन प्लेस ऑफ आर h बाई 2। क्लियर? सो दैट विल बी इक्वल टू एम जी एच इक्वल टू एम जी एच बाई 2 1 प्लस कॉस थीटा प्लस हाफ एम वी स्क्वायर दैट इज g इंटू एच बाई 2 कॉस थीटा। मास इज हियर, एम जी एच कैंसिल, मल्टीप्लाई बाई 4, so 4 equal to 2 plus 2 cos theta plus cos theta. If you simplify it, you will get 3 cos theta equal to 2 and cos theta equal to 2 by 3. Clear? Okay. Now मेरा एम क्या है? टू फाइंड मिनिमम स्पीड एट द हाईएस्ट पोजीशन। तो मिनिमम स्पीड कितना है? v cos theta. तो लेट अस कैलकुलेट minimum speed of the body during its motion, that is equal to v cos theta root of g into r कितना है बच्चों? h by 2 into cos theta is 2 by 3 into cos theta and cos theta into cos theta. Clear? So this will be equal to, put value of cos theta 2 by 3 root of gh over 3, ये आएगी मिनिमम स्पीड ऑफ द बॉडी ए ड्यूरिंग इट्स मोशन, दैट इज एट दैट पोजीशन। क्लियर? ओके।